اصغر آپ کو کیا ہو گیا ہے اصغر؟ میں ابھی ابھی ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اصغر کو بے سود زمین پہ پڑا دیکھ کے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں انہیں چائے دے کے یہاں سے گئی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ زمین پہ ہی گر گئے تھے۔ اصغر کیا ہو گیا ہے؟ بات تو کریں مجھ سے، خدا کے لیے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں چیخ چیخ کے انہیں اٹھا رہی تھی لیکن وہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بچے بھی اسکول گئے ہوئے تھے، میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا لیکن بیٹی ابھی 6ٹھی کلاس میں ہی تھی۔ وہ دونوں اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں گھر پہ اکیلی تھی، اسی لیے کچھ سمجھ نہ آنے پہ میں فوراً سے اپنا موبائل اٹھایا اور خالد بھائی کو کال ملا دی۔ خالد بھائی دراصل اصغر کے چھوٹے بھائی تھے۔ اصغر نے ہمیشہ بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا تھا، اسی لیے مجھے امید تھی کہ وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ ویسے بھی وہ اکثر ہی اصغر سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ خالد بھائی، اصغر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی آپ گھر آ سکتے ہیں کیا؟ میں نے بکھلائے ہوئے انداز سے کہا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے بھائی جان کو؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے بتائے تو صحیح کچھ۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا لیکن میں تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اصغر کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ خالد مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہارے بھائی کو چائے دے کے باہر گئی تھی، مگر جب آئی تو وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ خدا کے لیے جلدی پہنچ جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں گھر پہ بالکل اکیلی ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ میں نے ایک ایک کے فون کاٹ دیا۔ اصغر میرے سامنے بے سود زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں دل ہی دل میں اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اصغر کا سایہ ہم سب پہ سلامت رہے۔ تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو میں دوڑ کے بغیر جوتی کے ہی دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے خالد بھائی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر تو میری آنکھوں میں چمک آ گئی کیونکہ وہی ہم سب کا واحد سہارا تھے۔ اصغر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، سب گھر والے ہم سے لا تعلق ہو چکے تھے، لیکن ایک خالد بھائی ہی تھے جو ہمیشہ ہمارا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اصغر کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ انہوں نے سب گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کی تھی۔ میرے 3 دیور تھے اور 2 نندیں تھیں، لیکن جب سے میں اس گھر میں بیاہ کے آئی تھی آج تک کوئی بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، اسی لیے میں بھی نہیں جاتی تھی۔ لیکن اصغر کو چھوٹے بھائی سے ہمارا بہت ہی اچھا تعلق بنا ہوا تھا۔ بھابھی، بھائی کہاں ہیں؟ ابھی ایمبولینس آتی ہی ہوگی، میں نے انفارم کر دیا تھا۔ خالد بھائی نے یہ کہا تو مجھے بھی کچھ سکون ملا کیونکہ وہ ایمبولینس کو پہلے ہی کال کر چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی تو میں خالد بھائی کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ کے ہسپتال چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ اصغر کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ پریشانی سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ اصغر کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ماشاء اللہ سے وہ تو بالکل صحت مند تھے۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے، بس اللہ سے دعا کریں۔ میں بینچ پہ بیٹھی اصغر کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ خالد بھائی بھی وہیں پہ آ گئے، مجھے پریشان نہ ہونے کا کہہ رہے تھے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میں ان کی بیوی تھی، آخر میں پریشان نہ ہوتی تو پھر کون ہوتا؟ خالد بھائی، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، نہ جانے اصغر کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ ٹھیک بیٹھے تھے، میں انہیں چائے دے کے باہر گئی تھی، اب تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے کیونکہ میرے پاس اصغر کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ ابھی ہم دونوں بینچ پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک سے ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آتا دکھائی دیا تو میں دوڑ کے اس کی طرف پہنچ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے جاتے ساتھ ہی ڈاکٹر سے سوالات شروع کر دیے۔ جی جی، پریشانی والی بات نہیں ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ آپ دعا کریں، اگلے 72 گھنٹے ان کے لیے بہت قیمتی ہیں، اگر ان 72 گھنٹوں میں وہ بالکل ٹھیک رہے تو پھر انشاءاللہ آپ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اصغر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، حالانکہ پہلے انہیں دل کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میرے اندر تو ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، مگر تھوڑا بہت دل بھی مطمئن تھا کیونکہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن اگلے 72 گھنٹے ان کے لیے بہت ہی زیادہ نازک تھے اور 72 گھنٹے تک انہیں ہسپتال سے ڈسچارج بھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں دوبارہ سے بینچ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اب تو مجھے بچوں کی بھی پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ ان کے اسکول سے واپس آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔
خالد بھائی بچے گھر آنے والے ہوں گے، انہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ آخر کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ گھر چلے جائیں تو انہیں بتا دیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو، ورنہ مجھے ایسے ہی ان کی پریشانی لگی رہے گی۔ میں نے خالد بھائی سے یہ کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کے فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تو میرے سامنے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے، کبھی بھی انہوں نے پریشانی میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اور ویسے بھی اصغر نے خالد بھائی کو اپنے آفس میں ہی جاب دی ہوئی تھی۔ ان کی اتنی کوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی اصغر نے خالد بھائی کو بہت ہی اچھی پوسٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ اصغر نے اپنی محنت سے ایک بہت ہی بڑا کاروبار کھڑا کیا تھا جو کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، لیکن خالد بھائی کے پاس ہماری دی ہوئی جاب کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے حصے کی زمینیں بھی اپنے الٹے سیدھے تجربات میں ہی بیچ چکے تھے اور پیسے ضائع ہو گئے تھے۔ اصغر اس وقت انہیں سمجھاتے رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک بات نہ مانی، مگر اب وہ بالکل خالی ہاتھ ہو گئے تھے۔ اسی لیے ہی اصغر نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اصغر نے انہیں اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا تاکہ انہیں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، لیکن انہوں نے بھی بھائی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ وہ بھی ہمیں کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ جب کبھی بھی اصغر کو ان کی ضرورت ہوتی تو ایک فون کال سے وہ فوراً ہی ہمارے گھر پہنچ جاتے تھے۔ کبھی کبھی اصغر بزی ہوتے تو گھر کے کسی کام کے لیے وہ خالد بھائی کو بھیج دیتے۔ وہ بالکل بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ان پہ احسان کیا تھا تو ان کے احسانات بھی ہم پہ کچھ کم نہیں تھے۔ خالد بھائی وہاں سے جا چکے تھے اور میں بیچاری بینچ پہ بیٹھی اصغر کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی۔ ظہر کی اذانیں بھی دور دور سے آ رہی تھیں، اسی لیے میں فوراً سے وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے مسجد پہنچ گئی۔ ہسپتال بہت بڑا تھا، اسی لیے ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد بھی تھی جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ میں بھی وہیں پہ پہنچ گئی۔ میں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر اپنے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے دعا کرنے لگی، یا اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اصغر کو صحت، تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ نہ جانے انہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہم پہ رحم فرما اور اصغر کو صحت دے۔ یا اللہ اصغر کے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہم پہ رحم فرما۔ میں رو رو کے اصغر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرا دل تو اتنا غمگین ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دھڑکنا ہی بند ہو جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اصغر کی یہ حالت دیکھی تھی۔ ہمیشہ سے ہی وہ ماشاءاللہ تندرست رہے تھے، نہ جانے اچانک سے انہیں ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنے کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیے تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پورے جسم میں سکون پھیل گیا ہو۔ واقعی اللہ کے ذکر میں بہت سکون ملتا ہے۔ دعا وغیرہ کرنے کے بعد بھی میں نے وہیں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں سے تو آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک بار صاف کرتی تو پھر سے آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ کافی دیر وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد میں وہاں سے اٹھی تاکہ جا کے اصغر کی خیریت معلوم کر سکوں۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آپ مل سکتے ہیں۔ اب مجھے بھی کافی وقت ہو گیا تھا، اسی لیے میں فوراً سے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں چلی گئی جہاں پہ اصغر کو رکھا گیا تھا۔ اصغر کو ایسی حالت میں دیکھ کے تو میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے۔ اصغر کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ ان کی شکل تو ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ سالوں سے بیمار ہوں، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں جا کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں جو دوائیاں دی گئی تھیں ان میں نشہ تھا اور اسی لیے انہیں نیند آئی ہوئی تھی، ورنہ تو اس وارڈ میں اب بلب جل رہے تھے کہ کوئی بھی سو نہیں سکتا تھا۔ میں ان کے سر کے بالکل ساتھ بیٹھی ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کے تو میری آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اچانک سے اصغر کی آنکھ کھلتی دیکھی تو میں فوراً سے اپنے آنسو صاف کر کے، کیونکہ میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، شازیہ بیگم تم رو رہی ہو کیا؟ اصغر نے یہ کہا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں ان سے اپنے آنسو چھپا بیٹھی ہوں، لیکن وہ میرے آنسو پہچان چکے تھے۔ نہیں اصغر، میں نہیں رو رہی، ایسے ہی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، اسے صاف کر رہی تھی۔ میں نے یہ کہا تو نظریں بھی جھکا لی، کیونکہ میں اصغر کی آنکھوں میں دیکھ کے جھوٹ بالکل بھی نہیں بول سکتی تھی۔ شازیہ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، تم رو ہی رہی تھی، تم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، پھر بولتی کیوں ہو؟ اصغر اب ہنس ہنس کے میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ اصغر، آپ بھی نا ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، لیکن آپ ہے کہ میری کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں اب ان سے مصنوعی سا ناراض ہونے لگی تھی، کیونکہ میں بات بدلنا چاہتی تھی۔ اچھا بیگم صاحبہ، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نہیں کرتے آپ کو تنگ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असगर ने ये कहा तो मैंने अपने चेहरे पर भी सुकून सजा लिया, क्योंकि मैं असगर को पुरसुकून और खुश देखना चाहती थी। अगर मेरे चेहरे पर परेशानी वो देख लेते तो फिर वो भी परेशान होने लग जाते, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। शाजिया बेगम, बच्चों को पता है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। अब तो उनके आने का भी वक्त हो गया होगा। वो परेशान हो जाएंगे। असगर मुझसे बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। असगर, आप परेशान ना हो, मैंने खालिद भाई को घर भेज दिया है। यहाँ भी खालिद भाई आपको लेके मेरे साथ आए थे, मगर अभी मैंने उन्हें घर भेज दिया ताकि वो बच्चों को बता सकें, क्योंकि जिस वक्त हम आए थे तो उस वक्त बच्चे घर पे नहीं थे। आप परेशान ना हो, रेस्ट करें। मैं ये कह के फ़ौरन वहाँ से बाहर आ गई ताकि असगर के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लूँ। अस्पताल में ये हर चीज़ मैसर थी, इसीलिए मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए और आके असगर के पास बैठ गई। अब मैं उन्हें अपने हाथ से वो फ्रूट्स खिला रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी असगर को हल्की फुल्की ग़िज़ा ही देनी है। 72 घंटे उन्हें इसी अस्पताल में ही रहना था। मैं सोच चुकी थी कि मैं ही उनके पास रहा करूँगी। अभी मैं असगर को बैठी वहीं पे खिला ही रही थी कि अचानक से आहत और खालिद भाई भी उसी वार्ड में आ गए। आहत को देख के तो मैं हैरान ही रह गई। अगर आहत यहाँ पे आ गया था तो फिर बेचारी निम्रा अकेली घर बैठी क्या कर रही होगी। खालिद भाई, आप इसे लेके क्यों आ गए हैं? बेचारी निम्रा तो अकेली हो जाएगी घर पे। मैंने आहत को देखा तो खालिद भाई से पूछने लगी, भाभी जान, मैं क्या करता, ये जिद कर रहा था, इसे चलना है, बाबा को देखना है। निम्रा से भी मैंने कहा कि वो चले, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। खालिद भाई ने ये कहा तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। खालिद भाई, निम्रा को क्या हो गया है? ठीक तो थी ना वो अब उनसे निम्रा के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि सुबह तो जब मैं स्कूल गई थी वो बिल्कुल ठीक थी। जी जी भाभी, वो ठीक है, बस कह रही थी कि उसके सर में दर्द हो रहा है। आप परेशान ना हो, मैंने उसे मेडिसिन ले दी है, वो घर पे रेस्ट कर रही है। और वैसे भी मैं अभी थोड़ी देर में आहत को घर छोड़ आऊँगा। ये तो ज़िद कर रहा था, इसीलिए मिलवाने इसे यहाँ ले आया। खालिद भाई ने ये कहा तो मैं खामोश हो गई। मुझे परेशानी तो हो रही थी निम्रा की, क्योंकि वो छोटी थी। जब आहत को यहाँ बैठे हुए कुछ देर हो गई और उसने असगर से मिल लिया तो मैंने आहत को वापस भेज दिया, क्योंकि मैं निम्रा को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। खालिद भाई ही आहत को वापस घर छोड़ने गए हुए थे। मैं अभी भी असगर के साथ बैठी सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के उन पर फूंक रही थी, क्योंकि मेरी अम्मा कहती थी कि अगर मरीज पे सूरह फातिहा दम करके फूंकी जाए तो वो जल्द ही सेहत याब हो जाता है, अगर उसकी ज़िंदगी बची हो तो। जैसे जैसे शाम हो रही थी मेरी परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी। असगर तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मुझे घर और बच्चों की परेशानी थी कि आखिर बच्चे रात अकेले घर में कैसे गुजारेंगे, क्योंकि मैं तो सोच चुकी थी कि मैं असगर के पास ही रहूंगी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चों का क्या होगा। अचानक से वहाँ खालिद भाई भी आ गए तो उन्होंने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया कि मैं अभी सोचने पे मजबूर हो गई। भाई जान, आप घर चले जाएं, मैं असगर भाई के साथ आज रात गुजार लेता हूँ। आप सुबह सुबह आ जाइएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। अगर कोई मसला हो गया तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। खालिद भाई ने कहा तो मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। उनकी बात वाकई ठीक थी। अगर मैं शाम को घर चली जाती तो फिर मैं सुबह सुबह आ भी सकती थी, और वैसे भी बच्चों को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। खालिद भाई, आप मुझे घर छोड़ आए, फिर आप असगर के पास आ जाइएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकती। इंशाल्लाह मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मैंने ये कहा तो खालिद भाई मुझे घर भी छोड़ आए। घर छोड़ने के फौरन बाद ही खालिद भाई अस्पताल के लिए निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने नहीं आज वहाँ असगर के साथ रहना था। मैंने घर आते साथ ही खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि निम्रा को तो कुछ खाना बनाना आता ही नहीं था, और वैसे भी वो अभी छोटी थी और बीमार भी तो थी। आज उसके सर में दर्द था। देर तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने खाना घर पे ही बनाया था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बाहर का खाना खिलाना सही नहीं समझती थी। खालिद भाई ने मुझे रास्ते में कहा भी था कि रास्ते से ही खाना ले लेते हैं, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मुझे बाहर का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जाते साथ ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में खाना भी बन गया तो मैं खाना लेके कमरे में आ गई। दोनों बच्चे कमरे में ही बैठे थे। ठंड बहुत थी, इसलिए रात का खाना हम कमरे में ही खाते थे। मैं कमरे में पहुंची तो निम्रा ने कंबल मुंह तक ओढ़ा हुआ था, लेकिन आहत चारपाई पे बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मैंने जाके निम्रा को आहिस्ता से उठाया तो उसकी हालत देख के मैं और भी परेशान हो गई। उसे तो बुखार हो रहा था।
نہ جانے अचानक से हम पे क्या मुसीबत टूट पड़ी थी। एक तरफ असगर बीमार हो गए थे तो दूसरी तरफ निम्रा बेचारी बुखार से तप रही थी। आहत को तो मैंने रोटी सालन दे दिया, लेकिन निम्रा को मैं रोटी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि बुखार में हल्की फुल्की ग़िज़ा खाना ही ज़रूरी होता है। मैं किचन में गई तो एक बिस्किट का पैकेट और गर्म दूध ले आई। मैंने निम्रा को सहारा दे के उठाया और उससे अपने हाथों से थोड़ा बहुत खिला भी दिया। रात को उसे मैंने मेडिसिन दे दी थी, क्योंकि हमारे घर बुखार की मेडिसिन अक्सर ही पड़ी रहती थी। मुझे उम्मीद थी कि अगर वो मेडिसिन खाएगी तो सुबह तक बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो मेडिसिन थी ही ऐसी कि बहुत जल्द फ़र्क पड़ जाता था। किचन का काम वगैरह समेट के मैं भी कमरे में आ गई। आज मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के कमरे में ही सो जाती हूँ, क्योंकि असगर तो थे नहीं कि मैं अपने कमरे में सो पाती, और वैसे भी बच्चे परेशान थे। दूसरा, निम्रा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों के कमरे में ही सो जाती हूँ, वरना तो दोनों बच्चे अपने कमरे में सोते थे और मैं और असगर अपने कमरे में सोते थे। अब तो मेरा जिस्म भी थकावट से चूर हो रहा था। आते साथ ही मैं चारपाई पे लेट गई। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं बार बार ही करवटें बदल रही थी। मेरे जहन में असगर का ख्याल आ रहा था कि ना जाने अब वो ठीक भी होंगे कि नहीं। सोचो ही सोचो में ना जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादी में खो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो फजर की आज़ानें हो रही थीं। मैंने फ़ौरन से बिस्तर छोड़ा और फिर राहत को भी उठा दिया। निम्रा की तबीयत तो ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे नमाज के लिए नहीं उठाया था, मगर आहत को मैंने उठाया तो वो फ़ौरन से उठ गया। वो 5 वक्त का नमाज़ी था, बल्कि हमारे घर में सभी की आदत थी कि हर कोई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। आहत को उठाने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आई। बाहर तो धुंध ने डेरा जमाया हुआ था। घुप अंधेरा था पूरे सहन में। मैंने जाके बाहर वाला बल्ब जलाया और बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से निकलने के बाद मैंने वुज़ू किया और कमरे में आ गई। इस बार मैं अपने कमरे में गई थी और वहीं पे बैठ के ही नमाज़ पढ़ी थी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह ताला से असगर की सलामती की दुआएं मांगी और फिर जाए नमाज फोल्ड करके उठ खड़ी हुई, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बना के बच्चों को भी देना था। असगर के लिए भी मैंने यखनी बना के हस्पताल पहुंचाना था। नमाज के बाद मैंने खालिद भाई को भी कॉल कर दी थी, ताकि वो मुझे आधे घंटे में ही घर से पिक कर लें। मैं किचन में आई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। मैंने जल्दी से एक चूल्हे पे असगर के लिए यखनी बनाना शुरू कर दी और दूसरे चूल्हे पर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। अचानक से किचन का दरवाज़ा खुला और निम्रा अंदर आती दिखाई दी। उसे देख के मुझे भी कुछ इत्मीनान हुआ। निम्रा बेटा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैं अब उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। जी अम्मी जान, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बाबा ठीक हैं? वह अब अपने बाबा के बारे में पूछ रही थी। हाँ मेरी जान, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हैं। बस तुम उनके लिए दुआ करो। मैं अभी खाले चाचू के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे बाबा के लिए मैंने सूप बनाया है। तुम घर का ख्याल रखना और आज स्कूल नहीं जाना। आहत से भी कह देना कि वो स्कूल ना जाए, घर पे ही रहना दोनों। और हाँ, दरवाज़ा बंद कर लेना अंदर से। मैं अब उसे सारी नसीहतें कर रही थी, जिन्हें वो बड़े गौर से सुन रही थी। मेरी बेटी छोटी ज़रूर थी, लेकिन बहुत ही समझदार थी। जी मामा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप बाबा के पास जाएं, मैं घर का ख्याल रख लूँगी। वो ये कह के वहाँ से चली गई और मैं अपने काम में फिर से मगन हो गई। थोड़ी देर में मेरे काम ख़त्म हुए तो मैंने यखनी को एक टिफ़िन में डाला और कमरे में आ गई। मैंने अपना बुर्का पहन लिया और टिफ़िन भी मैंने टेबल पे रख दिया। अब मैं खालिद भाई का इंतज़ार कर रही थी। निम्रा को मैंने कह दिया था कि नाश्ता बना के मैंने रख दिया है, जब उनका दिल चाहे वो खा लें। अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं दौड़ के दरवाजे के पास गई। खालिद भाई बाहर बाइक लेके खड़े मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं 2 मिनट का कहकर फ़ौरन से कमरे में आई और टिफ़िन वाला डिब्बा लेके बाहर निकल आई। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी हाथ पाँव अकड़ के टूट पड़ेंगे। 15-20 मिनट में खालिद भाई और मैं दोनों अस्पताल पहुंच गए। भाभी मेरी बात सुने, मैं अभी कमरे में जाने ही लगी थी कि खालिद भाई ने मुझे रोक लिया। जी खालिद भाई, क्या बात है? मैं अब उनसे पूछ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी देख के तो मैं भी परेशान हो गई। खालिद भाई, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मैं उनसे सवाल पे सवाल कर रही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था और खामोश खड़े थे। भाभी परेशान ना हो, मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। रात को भाई की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने खुद ही आपको कॉल नहीं की ताकि आप परेशान ना हो। अब आप भाई से इस बारे में कोई जिक्र ना कीजिएगा। ये ना हो कि वो दिल पे बात ले लें। खालिद ने मुझे बताया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। खालिद भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? असगर की तबीयत ख़राब हो गई थी तो आपने मुझे तो बताना था ना। मैं अब उनसे नाराज़ हो रही थी।
नाराज़गी मेरा हक भी बनता था, क्योंकि जाते वक़्त मैंने खालिद भाई से साफ-साफ कह दिया था कि अगर असगर की तबीयत ठीक ना हो तो मुझे कॉल करके बता दें। लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया तक नहीं, और अब बता रहे थे। भाभी आप प्लीज़ नाराज़ ना हो, मैंने भी इसीलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो। रात का वक़्त था, आप कैसे बच्चों को अकेला छोड़ के यहाँ आ सकती थीं? अब मेरी भी तो मजबूरी समझें आप। खालिद भाई ने ये कहा तो मैं बिल्कुल ही खामोश हो गई। वो कह तो सच रहे थे, लेकिन मुझसे ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। असगर की तबीयत खराबी का सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं फौरन से दौड़ के कमरे में गई। असगर को फिर से ड्रिप्स लगी हुई थी। उनको जब भी मैं इस हालत में देखती तो मेरा दिल कट के रह जाता। ना जाने उन्हें किसकी नज़र लग गई थी कि अचानक से उनकी ये हालत हो गई थी। मैं अब उनके पास बैठी उनके लिए दुआएं कर रही थी कि अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे असगर को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैं दौड़ के बाहर गई और डॉक्टर को बुला के लाई। डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन वहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं कमरे से बाहर आ चुकी थी और मेरे हाथ पाँव फूल चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। हम पे तो अचानक से मुसीबत आन पड़ी थी। मैं कॉरिडोर में खड़ी असगर की सलामती की दुआएं कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। मेरी जुबान से तो एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। अचानक से मुझे ख्याल आया तो मैं दौड़ के मस्जिद में चली गई। मैं अपने अल्लाह से वहाँ पे बैठ के हम कलाम होना चाहती थी। मैं अपने अल्लाह को अपनी परेशानी बताना चाहती थी। मेरा दिल तो जैसे मुट्ठी में आ गया था। रो रो के मैं अपने अल्लाह से दुआएं कर रही थी। मेरे दिल को कुछ सुकून मिला तो मैं वहाँ से उठ के दोबारा से हस्पताल में आ गई। मैं परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। अचानक से डॉक्टर असगर के कमरे में आते दिखाई दिए तो मैं दौड़ के उनके पास गई। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मेरे सर पे आसमान ही टूट पड़ा। सॉरी मिस, हम आपके शौहर को नहीं बचा पाए। पहले तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ना जाने अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ क्यों गई, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन खुदा की मर्जी यही थी। आप हौसला करें, डॉक्टर ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में ये कहा था, लेकिन ये जुमला तो मेरे पूरे जिस्म में उतर गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी मेरी सांसें अटक जाएंगी और मैं ज़मीन बोस हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं ये अजियत बर्दाश्त करके बिल्कुल जीती जागती खड़ी रही। वहाँ खालिद भाई भी आ गए। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और मुझे दिलासा दे रहे थे। उनके दिलासों का मुझ पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो अपने शौहर को खो बैठी थी। उसके अलावा तो मेरे पास और कोई था ही नहीं। अस्पताल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद असगर की डेड बॉडी हम लेके घर पहुंच गए। जैसे ही घर आके मैंने ये खबर अपने बच्चों को दी तो वो फूट फूट के रोने लगे। मुझसे तो खुद अपना आप नहीं संभाला जा रहा था। मैं बच्चों को कैसे संभालती। एक खालिद भाई ही थे जो बेचारे हम सबको संभाल रहे थे। असगर बेसुध सहन के दरमियान में चारपाई पे लेटे हुए थे और मैं उनकी चारपाई को पकड़े फूट फूट के रो रही थी। मुझे तो अपने बच्चों का भी होश नहीं था कि वो बेचारे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। पूरा मोहल्ला हमारे घर में जमा हो चुका था। असगर के दूसरे भाई और बहनें भी आ गईं। जनाजे का वक्त भी होने वाला था। थोड़ी देर में मर्द हजरात आए और असगर की चारपाई को उठाने लगे। असगर को घर से रुखसत होता देख कर तो मेरी रूह तक छलनी हो गई। मैं चीखें मार मार के रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो अपना आपा ही खो बैठी थी। मोहल्ले की ख़वातीन मुझे पकड़ रही थी, लेकिन मेरा गम ही इतना बड़ा था कि उनकी तसल्ली का मुझ पे ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। मर्द हजरात चारपाई उठाने ही लगे कि अचानक से एक ऐसा जुमला सबके कानों में पड़ा कि सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ पड़ गईं। खबरदार जो किसी ने चारपाई को हाथ भी लगाया तो मैं उस वक्त तक चारपाई को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी जब तक मुझे मेरा हक न दे दिया जाए। दरवाजे पे खड़ी एक औरत ये सब कह रही थी। कोई भी हम में से उस औरत को नहीं जानता था। अचानक से वो दौड़ के आगे बढ़ी और असगर की चारपाई को पकड़ के बैठ गई। असगर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। वो रो रो के चारपाई को पकड़ के बैठी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन है। कौन हो तुम और असगर को कैसे जानती हो? मैं उससे सवाल कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा जवाब दिया कि मेरी रूह तक छलनी हो गई। मैं असगर की बीवी हूँ। जैसे ही उस औरत ने ये लफ्ज़ कहे तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? असगर की बीवी तो मैं हूँ। मैंने सवाल या नज़रों से देखते हुए उसे कहा तो वो फूट फूट के रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि असगर ने उससे छुपके 6 माह पहले निकाह किया था। मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब उस औरत ने निकाह नामा सबके सामने दिखा दिया। मुझे उस वक्त असगर पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके थे।
असगर ने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात तो तय थी कि वो लड़की सच कह रही थी, क्योंकि उसके पास सबूत थे जो सभी मोहल्लेदारों ने देख लिए थे। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। असगर के इंतकाल को पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो औरत जो खुद को असगर की बीवी बता रही थी, इसी घर में रह रही थी। ये भी सब मोहल्ले वालों ने ही कहा था कि इसका भी यहाँ रहने का हक बनता है, क्योंकि ये उसके भी शौहर का घर था। उसकी इद्दत भी यहीं गुजारना बनती थी। एक तो मुझे असगर के जाने का गम था, और दूसरा गम उनकी दूसरी शादी का था। इतना गम उनकी दूसरी शादी का भी नहीं था जितना ये कि उन्होंने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और मुझे कभी इस चीज़ की भिनक भी नहीं लगने दी। वो लड़की थी तो बहुत ही प्यारी और अच्छी, क्योंकि 1 हफ्ता वो मेरे साथ रही। मुझे उसे जानने में बिल्कुल भी वक्त न लगा। एक दिन मैं कमरे में बैठी असगर की यादों में गुम थी कि अचानक से सायरा कमरे में आई। उसके हाथ में चाय का एक कप था। बाजी, ये लें, चाय पी लें, आपके सर में दर्द था तो उससे ठीक हो जाएगा। वो चाय का कप लिए मेरे सामने खड़ी थी। मुझे तो कभी कभी उसे देख के हैरत होती कि आखिर वो इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। बेशक उसका दुख भी मेरे जितना ही था, लेकिन वो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। उसकी इस आदत ने उसे मेरे साथ रहने पर मजबूर कर दिया था। जब से वो यहाँ आई थी तो शुरू शुरू में मुझे उसका वजूद देख के असगर का धोखा याद आता, लेकिन उसके अखलाक ने मुझे उसके साथ अच्छा रहने पे मजबूर कर दिया। मुझे बाजी कह के बुलाती थी। कभी भी उसने मुझसे लड़ने वाली या सोचने वाली कोई बात नहीं की थी। वो वाकई में बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस 1 हफ्ते में हो गया। वो अभी भी मेरे सामने कप लेके खड़ी थी। मैंने अभी तक वो कप नहीं लिया था। मेरा दिल कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा था। सारा, ये तुम ले जाओ, मेरा दिल कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा। बस मैं अकेली बैठना चाहती हूँ। मैंने ये कहा तो वो जाने के बजाय मेरे साथ ही बैठ गई। बाजी, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, आपका दुख बड़ा है, लेकिन मेरा दुख भी आपके जितना ही है। मगर खाने पीने से क्या दुश्मनी? अगर आप खाएंगी पिएंगे नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, और अगर आप बीमार पड़ गई तो फिर आहद और निम्रा को कौन देखेगा? वो बेचारे भी तो बहुत परेशान हैं। आप बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। वह मुझे समझा रही थी। मैं तो असगर को सोच सोच के ही अपना दिल जला रही थी। कभी तो मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करती, तो कभी मुझे उनके किए पे अफ़सोस होता। मैं फूट फूट के रो रही थी। फिर फौरन से सायरा के गले लग गई। मुझे अपने गले से लगाए थपक रही थी और मुझे तसल्लियाँ दे रही थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। घर के सारे काम वही संभाल रही थी। इसके लिए ये घर अजनबी था, लेकिन फिर भी वो ऐसे घुल मिल गई थी जैसे सदियों से यहाँ रह रही हो। उसे तो निम्रा और राहत का भी मुझसे ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। सुबह सुबह जब नाश्ता बनाना और बच्चों को स्कूल भेजने का काम भी वही कर रही थी। मुझे एक सौतन नहीं बल्कि बहन मिल गई थी। मुझे हैरत होती कि वो आखिर अपने शौहर की बीवी के साथ इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर सकती है। लेकिन ये उसके एक नस्ली और अखलाकी होने का सबूत था कि वो सौतन होने के बावजूद भी मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रख रही थी। वक्त तो जैसे पर लगा के ही उड़ता जा रहा था। असगर को गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। हमारी जिंदगियां अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। इतनी जल्दी आखिर दिल के जख्म भी तो नहीं भर सकते। सायरा और मैं दोनों ही इद्दत में बैठी थी। वक्त के साथ साथ मैं खुद को संभाल रही थी। एक रात जब गला खुश्क होने की वजह से मेरी नींद खुली तो रात के 1:30 बज रहे थे। मैं और इमरा दोनों एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन आहद अभी भी हमसे अलग ही सोता था। वह बड़ा हो रहा था, इसीलिए अब अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कमरे में देखा तो पानी मौजूद नहीं था। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए मैं बगैर पानी पिए नहीं सो सकती थी। मैं फ़ौरन से उठी और आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती हुई कमरे से बाहर निकल आई। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं किचन में गई और वहाँ से पानी पी लिया। लेकिन पानी पी के मैं निकलने ही लगी थी तो मुझे गेस्ट रूम के दरवाजे से बहुत बारीक सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गेस्ट रूम की लाइट जल रही हो। गेस्ट रूम में तो सायरा ही रह रही थी। ना जाने इतनी रात को कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। मैं रूम के करीब गई तो मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं, जैसे सायरा किसी से बात कर रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो किससे बात कर रही है। मैंने अपने कान उसके खिड़की के साथ लगा लिया और गौर से सुनने लगी कि आखिर वो बात कर क्या रही है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। कुछ ही दिनों में ये घर भी हमारे नाम होगा और सारी जायदाद भी। ये पागल औरत है, इसे क्या मालूम कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये तो समझ रही है कि शायद असगर ने इसे धोखा दिया है।
और जितनी देर ये समझती रहे उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर इसे सच मालूम हो गया कि मैं असगर की बीवी नहीं बल्कि इससे झूठ बोला है तो शायद वो मुझे घर से ही निकाल दे। वो बेवकूफ़ तो समझ रही है कि असगर ने इसे धोखा दिया और उसने मुझसे दूसरी शादी की, लेकिन वो सच्चाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। बहुत जल्द ही मैं इस घर से सारी जायदाद अपने नाम करवा के ही निकलूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कल इंतज़ार करूंगी इसके सोने का। जैसे ही ये सोएगी तो चाबियां मैं उठा लूंगी। ये बेचारी तो जान ही नहीं पाएगी कि आखिर मैं इसके अपने शौहर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और यहाँ पे ये खेल सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए ही खेल रही हूँ। वरना मुझे क्या खुशी असगर साहब की बेवा बनने में। वो फ़ोन पे किसी से कहकहा लगा के हंसते हुए ये सब कह रही थी। ये बातें मेरे कानों में पड़ी तो मेरे सर पे आसमान ही टूट पड़ा। जिस लड़की को मैं असगर की दूसरी बीवी और असगर का धोखा समझ रही थी वो तो कोई और ही थी। ना जाने वो कौन थी, लेकिन इतना सच तो साबित हो चुका था कि वो असगर की बीवी नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आखिर उसे मेरी जायदाद से क्या वास्ता। उस वक्त तो मैं दबे दबे कदम वहां से निकल आई और आते ही कमरे में लेट गई। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तरह तरह के सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, जिनके जवाबात मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। रात को तो जैसे तैसे गुजर गई। सुबह मैं उठी तो मेरे उठने से पहले ही सायरा किचन में मौजूद थी। वो हमेशा की तरह आज भी किचन में खाना बनाने के लिए मुझसे पहले पहुंच गई थी। जब से वो इस घर में आई थी खाना पकाना सब कुछ वही कर रही थी। जब कभी मैं काम को हाथ लगाती तो वो मुझे रोक देती और यही कह देती कि वो घर के काम करके खुद को मसरूफ रखना चाहती है। लेकिन अब मुझे समझ आने लगी थी कि उसकी ये चाल थी कि वो सब काम करके हमारे दिलों में अपनी जगह बनाना चाहती थी, ताकि उसकी घिनौनी सोच और उसकी चाल पे हमारा ख्याल ही ना जाए। मगर मैं अब उसकी चाल को जान चुकी थी। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी कि आखिर मैं अकेली औरत क्या करूं, लेकिन मैं इतना सोच चुकी थी कि अब मैं उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया तो मैंने हमीद साहब को कॉल कर दी। हमीद साहब दरअसल असगर के करीबी दोस्त होने के साथ साथ उनके बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी थे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर सायरा नाम की कोई असिस्टेंट थी असगर के ऑफिस में। मैंने कॉल मिलाई तो हमीद साहब ने फ़ौरन से कॉल अटेंड कर ली। मैंने अब तक होने वाला सारा मामला तफसील से उनके गोश गुजार कर दिया, लेकिन मेरी हैरत उस वक़्त बढ़ गई जब उन्होंने सायरा नामी किसी लड़की के पर्सनल असिस्टेंट होने से साफ-साफ इनकार कर दिया। वो तो कह रहे थे कि सायरा नाम की लड़की उनके ऑफिस में काम ही नहीं करती। मेरे होश उड़ गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब आखिर मैं सच का पता कैसे लगाऊंगी। लेकिन फिर हमीद साहब ने एक ऐसा प्लान बताया जिससे मुझे भी इत्तेफाक करना पड़ा। मुझे अब बेसब्री से रात का इंतज़ार था, क्योंकि सायरा भी तो रात का ही इंतज़ार कर रही थी। वो सोच रही थी कि मेरे सोते ही वो मेरे कमरे से चाबियां उठाएगी। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती थी कि उसे ये कैसे पता है कि असगर की पर्सनल अलमारी की चाबियां मेरे कमरे की अलमारी में पड़ी हैं। मुझे हैरत तो होती थी कि आखिर वो इस घर में आने से पहले ही हमारे घर की जांच पड़ताल करवा के आई है। रात हुई तो निम्रा और मैं सो गए। आज मैंने खुद ही कमरे का दरवाज़ा बंद न किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि सायरा कमरे में आए। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस वक्त का इंतज़ार करने लगी कि कब सायरा कमरे में आए और मैं उसका पोल खोल दूं। रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी तक सायरा कमरे में नहीं आई थी। मैंने आंखें तो बंद की हुई थी, लेकिन मेरे जहन में तरह तरह के सवालात उठ रहे थे। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने भी यही ज़ाहिर किया कि मैं सोई हुई हूँ। सायरा फ़ौरन से मेरी अलमारी की तरफ गई और चाबियाँ उठा ली, क्योंकि मैंने चाबियाँ रखी ही उसके सामने थी। ये भी मेरे प्लान का हिस्सा था। पहले तो मुझे डर था, लेकिन हमीद साहब ने ही मुझे हिम्मत दी थी। जब सायरा अलमारी से चाबियाँ निकाल के कमरे से बाहर निकली तो मैंने भी अपने कदम ज़मीन पर रख लिए। मुझे पता था कि अब स्टडी रूम में ही जा रही है, जहाँ पर असगर की वो अलमारी खड़ी थी जिसमें जायदाद के सारे कागजात और सारी ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी। वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे थी। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ। वो फ़ौरन से स्टडी रूम में घुस गई, लेकिन मेरी हैरत उस वक्त बढ़ गई जब उसके घुसते ही फ़ौरन से एक लंबे कद का आदमी भी स्टडी रूम में घुस गया। ना जाने वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ। अब मुझे समझ आने लगी थी कि ज़रूर सायरा किसी के साथ मिलके ये घिनौना काम कर रही है। अब वक्त आ गया कि उस शख्स को पहचाना जाए। वो दोनों कमरे में जा चुके थे। जैसे ही वो दोनों कमरे में गए मैंने दरवाजे को फौरन से बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस घर आ गई। हमीद साहब भी उनके साथ थे, क्योंकि हमीद साहब ने मुझे कहा था कि जब सारा चाबियां लेके बाहर निकले तो मैं उन्हें मैसेज कर दूं। मैंने प्लान के मुताबिक उन्हें मैसेज कर दिया था, इसलिए वो पुलिस को लेके आ गए। मैं अकेली कमरे में दाखिल नहीं हुई थी, क्योंकि मैं अकेली औरत उनका सामना नहीं कर सकती थी।
اسی لیے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور میں پولیس کو ساتھ لیے اندر گئی تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرے سامنے سائرہ کے ساتھ اور کوئی نہیں بلکہ خالد بھائی ہی کھڑے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالد بھائی آخر ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ سائرہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ کیسے سائرہ کو ہمارے گھر کی ایک ایک چیز معلوم تھی، کیونکہ گھر کا بھیدی ہی ساتھ ملا ہوا تھا۔ مجھے گھن آتی ہے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ آپ کو اپنے بھائی کے جانے کا بھی غم نہیں، بلکہ ان کے یتیم بچوں کو لاوارث کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تاکہ ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، اور جو جائیداد بھی اصغر کی ہے وہ آپ ہتھیال لیں۔ میں ان سے چیخ چیخ کے سوال کر رہی تھی، لیکن ان کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے۔ وقت تو جیسے پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ پولیس کے ریمانڈ کرنے پہ خالد بھائی نے وہ سب اگل دیا کہ انہوں نے اصغر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ سب گھناؤنا کھیل رچایا، اور جب اصغر تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے تو خالد نے ہی غلط دوائیں دیں تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ ان کی جائیداد ہتھیا سکیں۔ حقیقت کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں جسے اپنے گھر کا محسن سمجھ رہی تھی وہی آستین کا سانپ نکلا، جسے اصغر نے بچوں کی طرح پالا اور اپنے آفس میں جاب دی، اس نے ہی ہمیں ڈنک مارا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے خود کو سنبھال لیا۔ سائرہ اور خالد کو جیل ہو گئی۔ سائرہ کا اصلی نام خدیجہ تھا اور وہ اپنی پہچان چھپا کے میرے گھر آئی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اب میں وہ پہلے والی شازیہ نہیں رہی تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے بدل دیا تھا۔ میں بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ اب تو میں اصغر کا آفس بھی خود ہی سنبھال رہی تھی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی میں ماں باپ دونوں بن کے ہی کر رہی تھی۔ زندگی نے مجھے ایک بہت ہی بڑا سبق دیا کہ اپنے ہونے کا لبادہ اوڑھے ہر شخص جو ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، ان میں ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ آستین کے سانپ نکلتے ہیں، جیسے خالد بھائی نکلے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمارے ہمدرد نہیں بلکہ آستین کے سانپ ہیں۔